اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے۔ عورتیں چھتوں پر جا چڑھیں۔ افق سے گرد کی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں اور یمامہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر ہے، کسی کا لشکر ہے، ہوشیار، خبردار، تیار ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھے۔ یہ آندھی نہیں، کسی کی فوج نہیں، مرتدین کے سوا اور کس کی فوج ہو سکتی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ کو افسوس ہونے لگا کہ کس برے وقت انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ گرد کے جو بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے، یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 2000 نفری تھی، یا وہ نفری تھی جو ابھی ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل جائیں گے، اور یہ خطرہ بھی کہ یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، مجاہدین اسلام، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد چپ ہو گئے کیونکہ انہیں دفوں اور ڈھولوں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے، دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاس بانو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دوڑتے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور دو گھڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے۔ وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مدر اور ربیہ قبائل کے سردار تھے۔ ایک سردار نے کہا، مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار بھی ہیں، گھڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی۔ دوسرے سردار نے کہا، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرط مسرت سے دونوں کو اپنے بازو میں لے لیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مدر اور ربیہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ایک سردار نے کہا، ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ولید کے بیٹے، ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے۔ دوسرے سردار نے کہا، مدینے سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمس کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا حاکم یا امیر ہرمس تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ وہ بڑا ہی بددینت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو، اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے، اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک ایلچی کو دے دیا اور کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمس تک پہنچائے اور جواب لائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شمال مشرقی عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مزور بن عدی، ہرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مثنى بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہو۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہے ہیں اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔
उबला और दीगर ऐसे इलाकों में जहां अरबी मुसलमान ईरानियों के महकूम थे, सूरत हाल कुछ और ही हो चुकी थी। पहले मुसन्ना बिन हारिसा ने उन बस्तियों के चंद एक जोशीले जवानों को ईरानियों की फौजी चौकियों और फौजी काफिलों पर शबखून मारने के लिए अपने साथ रखा हुआ था, लेकिन अब उस महकूम आबादी में से एक फौज तैयार करनी थी। कुछ फौज तो उसने अपने कबीले बकर बिन वाइल से तैयार कर ली थी, जो मदीना के एक सालार अला बिन हजरमी के दोष बदोश इराक की सरहद के इलाकों में मुर्तदीन के खिलाफ लड़ी भी थी। मुसन्ना ने ईरानियों के महकूम मुसलमानों को इत्तला भेज दी थी कि जिस कदर जवान आदमी वहाँ से निकलकर बाहर आ सकें आ जाएं। मुसलमानों का वहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जरतुश्तों की फौज मुसलमानों की बस्तियों पर कड़ी नजर रखती थी। उन्हें मालूम था कि उन पर शबखून मारने वाले यही मुसलमान हैं। अब ईरान की फौज को नए अहकाम मिले थे। ये अहकाम जारी करने वाला इराकी सूबे का हाकिम हरमस था। चंद ही दिन पहले का वाक़या था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का एलची हरमस के दरबार में पहुंचा। ये शहंशाहों का दरबार था। हरमस को जब इत्तला दी गई थी कि मदीने के सालार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का एलची आया है, तो हरमस ने चेहरे पर नफरत और रौनत के आसार पैदा कर लिए। उसने कहा, मैं किसी मुसलमान की सूरत नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्यों आया है। एक दरबारी ने उठकर हरमस से कहा, जरदुश्त की कसम, खालिद का एलची कोई पैगाम लाया होगा जो उसकी अपनी मौत का पैगाम साबित होगा। हरमस ने कहा, ले आओ उसे अंदर। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का एलची दो मुहाफिजों के साथ बड़े तेज कदम उठाता हरमस के दरबार में दाखिल हुआ और सीधा हरमस की तरफ बढ़ गया। दो बर्छी बरदारों ने सामने आकर उसे रोका, लेकिन वो दोनों के दरमियान से गुजरकर हरमस के सामने जा खड़ा हुआ। एलची ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। हरमस आतिश परस्त को खालिद बिन वलीद सालार मदीना का सलाम पहुँचे, जिनका एक पैगाम लाया हूँ। हरमस ने हिकारत से कहा, हम उस सालार का सलाम कबूल नहीं करेंगे जिसके एलची में इतनी भी तमीज नहीं कि हमारे जाहो जलाल को पहचान सके। क्या मदीना में जंगली और गंवार आबाद हैं? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम एक शाही दरबार में जा रहे हो? तुम्हें दरबार के आदाब नहीं सिखाए गए? एलची ने जुर्रत से सर कुछ और ऊंचा करके कहा, मुसलमान सिर्फ अल्लाह के दरबार के आदाब से आगाह होता है। उस इंसान को इस्लाम कोई हैसियत नहीं देता जो अल्लाह के बंदों पर अपने दरबार का रोब गांठता है। मैं तुम्हारा दरबारी नहीं, उस सालार का एलची हूँ जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है। हरमस ने फिरौनों के से लहजे में कहा। हरमस के सामने वो तलवार कुंद हो जाएगी और हाथ बढ़ाकर तहकुमाना लहजे में बोला, लाओ तुम्हारे अल्लाह की तलवार ने क्या पैगाम भेजा है। एलची ने पैगाम उसके हाथ में दे दिया, जो वो इस तरह पढ़ने लगा जैसे अजराह मजाक उसने एक कागज हाथ में लिया। पैगाम पढ़कर उसने उसे मुट्ठी में इस तरह चुड़मुड़ कर दिया जैसे ये एक रद्दी का टुकड़ा हो जिसे वो फेंक देगा। हरमस ने कहा, क्या कीड़े मकोड़े ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो एक चट्टान से टक्कर ले सकेंगे? क्या मदीने वालों को किसी ने नहीं बताया कि हर कल भी उस चट्टान से टकराकर अपना सर फोड़ चुका है? क्या हम तुम्हें अपनी फौज की एक झलक दिखाएं ताकि तुम अपने सालार को और अपने बूढ़े खलीफा को बता सको कि इराक की सरहद की तरफ देखने की भी जरूरत न करें? एलची ने कहा, मुझे सालार आला ने सिर्फ ये हुक्म दिया था कि ये पैगाम हरमस तक पहुंचाकर उसका जवाब लाऊं। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। हरमस ने कहा, तुम जैसे एलची के साथ हम ये सलूक करते हैं कि उसे कैद खाने में फेंक देते हैं। अगर हम रहम करें तो उसे कैद खाने की अजियत से बचाने के लिए जल्लाद के हवाले कर देते हैं। एलची ने पहले से ज्यादा जुर्रत से कहा, मेरी जान मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर तुम मुसलमान होते तो तुम्हें इल्म होता कि मेहमान के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन अल्लाह के मुनकिर और आग के पुजारी से इससे बेहतर सलूक की तवक्को नहीं की जा सकती। मुझे जल्लाद के हवाले कर दो, लेकिन ये सोच लो कि मुसलमान मेरे और मेरे मुहाफिजों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेंगे। हरमस बिदक कर सीधा हो बैठा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। वैसी ही सुर्खी उसके चेहरे पर भी आ गई, जैसे कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के उस एलची को कच्चा चबा जाएगा। हरमस ने गरज कर कहा, निकाल दो इसे हमारे दरबार से। 4-5 दरबारी जिनके हाथों में बर्छियां थीं तेजी से आगे बढ़े। एलची के दोनों मुहाफिजों ने तलवारें निकाल ली। पहले वो दोनों एलची के पीछे खड़े थे, अब वो एलची के पहलुओं में उस जगह खड़े हो गए कि उनकी पीठें एलची की तरफ थीं। एलची ने बारूद आवाज में कहा, हरमस, जंगजू मैदान जंग में लड़ा करते हैं, अपनी ताकत का घमंड अपने दरबार में न दिखा। मुझे अपने सालार के पैगाम का जवाब मिल गया है, तुझे हमारी कोई शर्त कबूल नहीं। क्या यही है तेरा जवाब? हरमस ने गुस्से से कांपती हुई बुलंद आवाज से कहा, निकल जा इस दरबार से। अपने सालार से कहना कि मेरी ताकत को मैदान जंग में आजमा ले। हरमस के बर्छी बरदार दरबारी उसके इशारे पर रुक गए थे। एलची के मुहाफिजों ने तलवारें न्यामों में डाल ली। एलची पीछे को मुड़ा और तेज कदम दरबार से निकल गया। दोनों मुहाफिज उसके पीछे पीछे जा रहे थे। हरमस ने मुट्ठी खोली जिसमें खालिद का पैगाम चुड़मुड़ किया हुआ था। चूंकि ये पैगाम बारीक खाल पर लिखा हुआ था, इसलिए ये मुट्ठी खोलते ही सीधा हो गया।
हरमज ने ये पैगाम फारिस के शहनशाह उर्द शेर की तरफ इस इत्तला के साथ भेज दिया कि वो मुसलमानों से मुकाबले के लिए फौरी तौर पर सरहद की तरफ कूच कर रहा है और वो मुसलमानों को सरहद से दूर ही खत्म कर देगा। उसके एक दरबारी ने कहा, हरमज का इकबाल बुलंद हो। जिस दुश्मन को आप सरहद से दूर ही खत्म करना चाहते हैं वो पहले ही सरहद के अंदर मौजूद है। हरमज ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उस दरबारी ने कहा, ये वो अरबी मुसलमान हैं जो दजला और फरात के उस इलाके में आबाद हैं जहाँ ये दोनों दरिया मिलते हैं। ये इलाका उबला तक चला जाता है। उन्होंने कभी की सल्तनत ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है। मदीने वालों ने हम पर हमला किया तो ये मुसलमान उनसे मिल जाएंगे। एक फौजी मुशीर ने कहा, मैं एक अर्ज करने की जुर्रत करता हूँ। कई दिनों से इत्तलाएं मिल रही हैं कि मुसलमान जो लड़ने के काबिल हैं यानी जवान हैं वो अपनी बस्तियों से गायब होते जा रहे हैं। वो यकीनन मुसन्ना बिन हारिसा तक पहुंच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो फौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। हरमज ने पूछा, क्या तुमने फरार का ये सिलसिला रोकने के लिए कोई कार्रवाई की है? फौजी मुशीर ने जवाब दिया, फौजी दस्ते बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, उसके बावजूद मुसलमान गायब हो रहे हैं। हरमज ने गुस्से और तंज से कहा, सरहदी चौकियों को अभी हुक्म भेजो कि मुसलमानों की बस्तियों पर छापे मारते रहें। हर बस्ती की तमाम आबादी को बाहर निकाल कर देखें कि कितने आदमी गायब हैं और वो कब से गायब हैं। जिस घर का आदमी गायब हो उस घर को आग लगा दो। कोई मुसलमान सरहद की तरफ जाता नजर आए तो उसे पकड़ कर कत्ल कर दो या दूर से उस पर तीर चला दो। इस इलाके में मुसलमानों की एक बस्ती थी जो सरहद के बिल्कुल करीब थी। ईरानी फौज की थोड़ी सी नफरी ने उस बस्ती में जाकर ऐलान किया कि बच्चे से बूढ़े तक बाहर निकल आए। सिपाहियों ने घरों में घुस घुस कर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। औरतों को अलग और मर्दों को अलग खड़ा कर दिया। सिपाहियों का अंदाज बड़ा ही जालिमाना था। वो गालियों की जबान में बात करते और हर किसी को धक्के दे देकर इधर से उधर करते। उन्होंने ऐलान किया कि उन आदमियों के नाम बताए जाएं और उनके घर दिखाए जाएं जो बस्ती में नहीं है, लेकिन तमाम आबादी खामोश रही। ईरानी कमांडर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जवाब दो। उसे कोई जवाब न मिला। कमांडर ने आगे बढ़कर एक बूढ़े आदमी को गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और उससे पूछा कि इस हुजूम में कौन कौन नहीं है। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम नहीं। कमांडर ने न्याम से तलवार निकालकर बूढ़े के पेट में घोंप दी और तलवार जोर से बाहर को खींची। बूढ़ा दोनों हाथ पेट पर रख कर गिर पड़ा। कमांडर फिर एक बार लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ। अचानक एक तरफ से 8-10 घोड़े सरपट दौड़ते आए। उनके सवारों के हाथों में बर्छियां थीं। ईरानी फौजी देखने भी न पाए थे कि ये कौन है। उनमें से कई एक के जिस्मों में बर्छियां उतर चुकी थीं और घोड़े जिस तरह आए थे उसी तरह सरपट दौड़ते बस्ती से निकल गए। ईरानी फौजियों की तादाद 40-50 थी। उनमें भगदड़ मच गई। उनमें से 8-10 जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। घोड़ों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी जो दूर हटती गई और अब फिर करीब आने लगी थी। अब फौजियों ने भी बर्छियां और तलवारें तान ली और उस तरफ देखने लगे जिधर से घोड़ों की आवाजें आ रही थी। पीछे से बस्ती की आबादी उनके ऊपर टूट पड़ी। उन सिपाहियों में से वही जिंदा रहे जो किसी तरफ भाग निकले थे। जब सवार बस्ती में पहुंचे तो उन्हें घोड़े रोकने पड़े क्योंकि उनकी राह में बस्ती के लोग घायल थे जो ईरानी फौजियों का कश्त खून कर रहे थे। इससे पहले मुसलमानों ने यूं खुले बंदों ईरानी फौज पर हमले की जुर्रत कभी नहीं की थी। एक ईरानी सिपाही पर हाथ उठाने की सजा ये थी कि हाथ उठाने वाले के पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता। अब यहाँ के मुसलमान इसलिए दलेर हो गए थे कि उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि मदीना की फौज आ गई है। जिन सवारों ने ईरानियों पर हमला किया था वो कुछ उस बस्ती के रहने वाले जवान थे, कुछ दूसरी बस्तियों के थे। ये महज इत्तेफाक था कि वो मुसन्ना बिन हारिसा की तरफ जाते हुए उस बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बस्ती की आबादी को बाहर खड़े देखा और ईरानी फौजियों को भी देखा। वो छुपकर आगे निकल सकते थे, लेकिन ईरानी कमांडर ने बूढ़े के पेट में तलवार घोंपी तो सब ने आपस में सलाह मशवरे किए बगैर घोड़ों के रुख उस तरफ कर लिए। ईरानी फौजियों ने तो उन्हें जाते हुए देखा ही नहीं था। ये अल्लाह की मदद थी जो उस मजलूम बस्ती को बर वक्त मिल गई। ये बस्ती तो खुशकिस्मत थी कि उसे मदद मिल गई और ईरानियों की भयानक सजा से बच गई। मुसलमानों की दूसरी बस्तियों पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। हर बस्ती के हर घर की तलाशी ली जा रही थी। ये देखा जा रहा था कि कितने आदमी गायब हो चुके थे। हर बस्ती में ईरानी कई आदमियों को कत्ल कर रहे थे। बाज मकानों को उन्होंने नजर आतिश भी कर दिया। 3-4 रोज ये सिलसिला चला। उसके बाद ईरानी फौज को बस्तियों की तरफ तवज्जो देने की मोहलत न मिली। हरमज अपनी फौज लेकर आ गया। सरहदी फौज को भी उसने अपने साथ ले लिया और सरहद से निकल गया। उसका इरादा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को वो सरहद से दूर रोक लेगा। हरमज की पेशकदमी बहुत तेज थी। मार्च 633 ईस्वी का तीसरा हफ्ता था जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यमामा से 10,000 फौज लेकर कूच किया। ये मुहर्रम 12 हिजरी का महीना था। उनकी पेशकदमी भी बहुत तेज थी।
हरमज अपनी फौज के साथ अपनी सरहद से बहुत दूर काजिमा के मकाम पर पहुंच गया और फौज को वहीं खैमाजन कर दिया। ये मकाम यमामा और उबला के रास्ते में पड़ता था। हरमज को मालूम नहीं था कि उसकी पेशकदमी को देखने वाले मौजूद हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी काजिमा से दूर थे कि उन्हें इराक की समत से आते हुए 2 शुतर सवार मिले। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि जरतुश्तों की फौज काजिमा में खैमजन है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहीं से रास्ता बदल दिया। ये शुतर सवार मुसन्ना के भेजे हुए थे। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ये भी बताया कि वो हफीर के मकाम तक इस तरह पहुंच जाए कि जरतुश्तों की फौज के साथ उसकी टक्कर न हो। शुतर सवारों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को एक खुशखबरी ये सुनाई कि उनके लिए 8000 नफरी की फौज तैयार है। ये फौज इस तरह तैयार हुई थी कि मुसन्ना बिन हारिसा, मजूर बिन अदी, हरमला और सुलमा ने 2-2 हजार लड़ने वाले जवान इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज की तादाद 18,000 हो गई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी पेशकदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि काजिमा के दूर से गुजरकर हफीर तक पहुंच सके। लेकिन हरमज के जासूस भी सहरा में मौजूद थे। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को दूर के रास्ते से देख लिया था। आगे वो रास्ता था जो हफीर से नब्बाज की तरफ जाता था। हरमज ने अपनी फौज को खेमे उखाड़ने और बहुत थोड़े वक्त में हफीर की जानिब कूच करने का हुक्म दिया। हफीर के इर्द गिर्द पानी के कुएं मौजूद थे। हरमज ने वहां खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले पहुंचकर खेमे गाड़ दिए। इस तरह पानी ईरानियों के कब्जे में चला गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी हफीर से कुछ दूर थे कि एक बार फिर दोनों शुतर सवार उनके रास्ते में आ गए और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तला दी कि दुश्मन हफीर के मकाम पर पानी के कुएं पर काबिज हो चुका है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ और आगे जाकर ऐसी जगह पड़ाव का हुक्म दे दिया जहाँ दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिल सकती थी। फौज ने वहाँ पड़ाव तो डाल दिया, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया गया कि फौज में बेइत्मीनानी पाई जाती है कि पड़ाव ऐसी जगह किया गया है जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने कुछ सोचकर यहाँ पड़ाव किया है। तमाम लश्कर से कहो कि अगर दुश्मन पानी पर काबिज है तो परेशान न हो। हमारी पहली लड़ाई पानी के लिए होगी। पानी उसी को मिलेगा जो जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। तुमने दुश्मन को पानी से महरूम कर दिया तो समझो तुमने जंग जीत ली। सलारे आला का ये पैगाम सारे लश्कर को सुना दिया गया और सब एक खूंरेज जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब लश्कर की नफरी 18,000 हो गई थी। मुसन्ना बिन हारिसा, मजूर बिन अदी, हरमला और सुलमा 2-2 हजार आदमी साथ लिए खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से आ मिले। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो एलची हरमज के पास भेजा था वो भी उसी पड़ाव में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और बताया कि हरमज ने उसके साथ कैसा तौहीनामे सुलूक किया है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जो पास ही बैठा हुआ था कहा, उसकी 1 लाख दिरहम की टोपी ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। खुदा ये नहीं देखता कि किस इंसान के सर पर क्या रखा है, खुदा तो देखता है कि उसके सर के अंदर क्या है, उसके अज़ाइम क्या है और उसकी नीयत क्या है और वो सोचता क्या है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरान होकर पूछा, 1 लाख दिरहम की टोपी, क्या हरमज इतनी कीमती टोपी पहनता है? मुसन्ना बिन हारिसा ने जवाब दिया, फारिस की शहनशाही का एक दस्तूर है, उनके यहाँ हस्ब नसब और हैसियत को देखकर उसके मुताबिक टोपी पहनाई जाती है जो उनके शहनशाहों की तरफ से अता होती है। ज्यादा कीमती टोपी सिर्फ वो अफराद पहनते हैं जो आला हस्ब नसब के हों और जिन्होंने रियाया में भी और शाही दरबार में भी तौकीर और वजाहत हासिल कर रखी हो। इस वक्त हरमज सबसे ज्यादा कीमती टोपी पहनता है। कोई और 1 लाख दिरहम की टोपी नहीं पहन सकता। उस टोपी में बेशकीमत हीरे लगे हुए हैं और उसकी कलगी भी बहुत कीमती है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिरौनों ने अपने सरों पर खुदाई टोपियां सजा ली थी। कहाँ है वो? कहाँ है उनकी टोपियां? मुझे किसी की बेशकीमत टोपी मरूब नहीं कर सकती, न किसी की टोपी तलवार के वार को रोक सकती है। मुझे ये बताओ कि आतिश परस्तों की फौज लड़ने में कैसी है और मैदान जंग में कितनी तेजी से नकलो हरकत करती है। फारिस के सिपाही की जिर्राह और हथियार देख कर खौफ सा आता है। मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया, सर पर लोहे की जंजीरों की खोद, बाजुओं पर किसी और धात के खोल और टांगे आगे की तरफ से मोटे चमड़े या धात से महफूज की हुई। हथियार इतने कि हर सिपाही के पास एक बर्छी, एक तलवार, एक वजनी गुर्ज, एक कमान और एक तरकश होती है जिसमें हर सिपाही 30 तीर रखता है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, और लड़ने में कैसे हैं? मुसन्ना बिन हारिसा ने जवाब दिया, जुर्रत और अकल से लड़ते हैं, उनकी दलेरी मशहूर है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुसन्ना, क्या तुमने महसूस नहीं किया कि आतिश परस्तों के सिपाही कितने कमजोर हैं और उनकी जुर्रत की हद क्या है? उनकी जुर्रत की हद आहनी खोद और बाजुओं और टांगों पर चढ़ाए हुए खौलों तक है। वो नहीं जानते कि जज्बा लोहे को काट देता है। लोहे की तलवार और बर्छी की अन्नी जज्बे को नहीं काट सकती। ज़रा और धात या चमड़े के खोल
हिफाजत के झूठे जरिए हैं। एक खौल कट गया तो सिपाही अपने आप को गैर महफूज समझने लगता है। फिर उसमें इतनी सी जुर्रत रह जाती है कि वो अपने आप को बचाने की और भागने की कोशिश करता है। अल्लाह के सिपाही की जिर्रा उसका अकीदा और ईमान है। मैं तुम्हें फारसियों की एक और कमजोरी दिखाऊं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिद से कहा, सलारों और कमांडारों को फौरन बुलाओ। फौरी तौर पर काजमा की तरफ कूच करो और कूच बहुत तेज हो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन